قوم کے حق کو اپنی تعلیم میں بلاتے ہیں کہ وہ ہمیں شکریہ. ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے اور کھڑے رہیں گے خداوند کے کلام کی تعلیم کے لیے. ایک حوالہ پڑھیں گے اب عروج کی کتاب میں سے 28واں باب. عروج پرانے عہد نامے میں اس کا 28واں باب اور اس کی 30ویں آیت. اور تو عدل کے سینہ بند میں اوریم اور تمیم کو رکھنا، اور جب ہارون خداوند کے حضور جائے تو یہ اس کے دل کے اوپر ہوں. یوں ہارون بنی اسرائیل کے فیصلہ کو اپنے دل کے اوپر خداوند کے روبرو ہمیشہ کے لیے رہے گا. خداوند کا کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. سب بیٹھ سکتے ہیں. عزیزو، آج جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے پرانے عہد نامے میں، یہ اوریم اور تمیم کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ کاہن اس کو استعمال کیا کرتے تھے. یہ عدل کے سینہ بند کے ساتھ اس کو رکھا جاتا تھا اور اپنے دل کے اوپر یعنی لیفٹ سائڈ پہ جو کاہن تھا اس کو باندھا کرتا تھا. اوریم اور تمیم کے اوپر پیغام لے کے آنے کا میرا مقصد یہ تھا، کیونکہ میں نے اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں سنا، تو اس لیے تربیت ہونا بھی ضروری ہے، بائبل کو سیکھنا بھی ضروری ہے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ اوریم اور تمیم کے بارے میں ہوگا، اور ہم خدا کے کلام میں سے اس کے بارے میں سیکھیں گے اور روایتوں میں سے بھی سیکھیں گے. عزیزوں، میں ایک لیکچر دے رہا تھا سعودی عرب میں، کیونکہ میرا زیادہ وقت خدمت کا سعودی عرب میں گزرا ہے. تو وہاں پر میں کاہن کے لباس کے اوپر میں ایک ٹاپک لے کے آیا تھا کہ کاہن کا لباس کیسا ہونا چاہیے. کاہن کا جو لباس تھا وہ کسی بادشاہ کے لباس سے کم نہیں ہوا کرتا تھا. اس میں قیمتی پتھر جڑے ہوتے تھے، اس کو ایک تاج، اس کے بعد جبہ، اور اس کے جو ہوتا تھا اس کے گھیر میں گھنٹیاں، انار اور بہت کچھ اس میں ہوتا تھا. سونا بھی جڑا ہوا ہوتا تھا، اور اس میں ایک سینہ بند بھی ہوتا تھا جس میں 12 پتھر ہوتے تھے. اور جو وہ 12 پتھر تھے سینہ بند میں، سینہ بند کہتے ہیں بریسٹ پلیٹ کو، ٹھیک ہے جی، اس کے لیے انگلش میں لفظ یوز کیا جاتا ہے بریسٹ پلیٹ. اور وہ 8 انچ بائی 8 انچ کا ہوتا تھا، یعنی اس وقت انچ کی یونٹ تو ایجاد نہیں کی ہوئی، لیکن آلموسٹ اتنا ہی ہوتا تھا. تو اس میں 12 پتھر ہوتے تھے، یعنی کہ 3 پتھر اوپر، اس کے نیچے 3 پتھر، پھر نیچے 3 پتھر اور پھر نیچے 3 پتھر، یعنی کہ 3 کی ایک قطار ہوتی تھی. 12 پتھر ہوتے تھے. یہ 12 پتھر 12 قبائل کو ریپرزینٹ کرتے تھے، اور ان 12 پتھروں کے اوپر 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے تھے. جب خدا کا کاہن خدا کی حضوری میں جاتا تھا تو 12 قبائل کے ناموں کو بھی ساتھ لے کے جاتا تھا. ہلیلویا. تو اوریم اور تمیم جو تھا اس بریسٹ پلیٹ کے ساتھ باندھا جاتا تھا، اپنے دل کے قریب اس کو رکھا جاتا تھا. جب کاہن اوریم اور تمیم کے بارے میں ابھی بتانے والا ہوں. اوریم اور تمیم کیا تھی؟ جب کاہن کوئی بھی فیصلہ کرتا تھا، کوئی بھی فیصلہ کاہن کرتا تھا، تو اس فیصلے کو کرنے سے پہلے اوریم اور تمیم کو استعمال کرتا تھا، اور خداوند کے حضوری میں جا کر اسے استعمال کرتا تھا، اور اس سے خداوند کی طرف سے اس فیصلہ کرنے میں اس کو مدد ملتی تھی کہ یہ فیصلہ کیسا ہونا چاہیے، ہاں میں جواب ہونا چاہیے یا نہ میں جواب ہونا چاہیے. اس کے بارے میں اوریم اور تمیم کے بارے میں بہت سارے نظریات پائے جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے، نظریہ ہے کہ جو اوریم اور تمیم تھا وہ 2 پتھر تھے. ایک پتھر سفید تھا اور دوسرا کالے رنگ کا پتھر تھا. اور کچھ نظریات کے مطابق یہ جو 2 پتھر تھے، ان پتھروں کی جو شیپ تھی
वो ट्राईएंगुलर थी। यानी ट्राईएंगल की बहुत सारी किस्में होती हैं, उनमें से एक जो ट्राईएंगल है उसकी किस्म होती है इक्विलेटरल ट्राईएंगल, यानी उसके सारे जाविये और सारे सिले बराबर होते हैं। ठीक है जी। तो ये जो मसल्लस टाइप ये पत्थर जो दो होते थे, किसी को पता है कि इजराइल के झंडे में एक स्टार है ना, जिसको स्टार ऑफ डेविड कहा जाता है। यानी ऊपर नीले रंग की पट्टी है, नीचे भी नीले रंग की पट्टी है, जो कि दो दरियाओं को जाहिर करती है। तो ये स्टार ऑफ डेविड है। तो ये जो तकोनी दो पत्थर थे, ओरीम और तमीम, रवायतों के मुताबिक, कुछ लोगों के कहने के मुताबिक ये तिकोनी पत्थर थे। यानी कि एक तिकोन का कोना ऊपर की तरफ ऐसे लगाया जाता और दूसरी तिकोन का जो बेस होता था वो ऊपर की तरफ लगा के, तो जो इजराइल के झंडे में जो स्टार ऑफ डेविड है इसको मुकम्मल किया जाता। एक नजरिए के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं। और इसमें एक ये भी बात की जाती है, क्योंकि स्टार ऑफ डेविड के जो उसके कोने हैं वो 6 होते हैं, तो 6 कोने जो हैं उसमें 7वां कोना उस वक्त शामिल होगा जब मसीह यीशु की आमद होगी। तो उस वक्त ये 7 कोने, ये एक नजरिए के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं, उनके मुताबिक जो उनका मसीह आने वाला है, मसीह यीशु को तो उन्होंने उस वक्त भी कबूल नहीं था ना किया, तो अभी भी वो मसीहा के इंतजार में है और कहते हैं कि 7वां कोना स्टार ऑफ डेविड का उस वक्त मुकम्मल होगा जब हमारा मसीहा आएगा। तो ये उरीम और तमीम, जब हम कैथोलिक बाइबल पढ़ते हैं तो कैथोलिक बाइबल में उरीम और तमीम के लिए हाशिया में जो अल्फाज लिखे गए हैं वो ये लिखे गए हैं कि ये इब्रानी 2 लफ्ज हैं, इब्रानी जबान के 2 अल्फाज हैं, इससे ज्यादा कैथोलिक बाइबल में कुछ भी नहीं लिखा गया। उरीम और तमीम का जब हम हवाला बाइबल में पढ़ते हैं तो हमें 4 या 5 जगहों पे उरीम और तमीम का जिक्र मिलता है। अजीजों, उरीम और तमीम का जो मतलब होता है, जो माहिरीन हैं वो कहते हैं कि इसका मतलब है कमालात और रोशनियां और कमालात। जब काहन कोई भी फैसला करता था तो उरीम और तमीम को इस्तेमाल करता था, और वो उसके इस्तेमाल करने का जो तरीकाकार होता था माहिरीन के मुताबिक, हिस्ट्री के मुताबिक, वो ये था कि एक हाथ में एक पत्थर को उठाया जाता था और दूसरे हाथ में दूसरे पत्थर को उठाया जाता था और खुदा से दुआ की जाती थी। और कुछ माहिरीन का मतलब है कि अगर तो जवाब हाँ में होता था या ना में होता था तो सफेद और काले में रोशनियां जाहिर होती थी, और कुछ का कहना है कि इनके ऊपर एक तहरीर उभर आती थी फैसला सुनाने के लिए, और कुछ का मानना है कि अगर काला पत्थर रोशन हो जाता था तो ना में जवाब होता था, और अगर सफेद होता था तो हाँ में होता था। पुराने जमाने में जब भी काजी कोई फैसला करता था तो सफेद या काला पत्थर फेंका करता था। अजीजों, सफेद और काला पत्थर फेंकने का मकसद ये होता था कि अगर काला फेंकता था तो सजा हो जाती थी, और अगर सफेद फेंकता था तो उसके हक में फैसला हो जाता था और उसकी रिहाई हो जाती थी। तो उरीम और तमीम जो 2 पत्थर थे, इसको बादशाह भी इस्तेमाल कर सकते थे, यानी इसको काहिन तो इस्तेमाल करते ही करते थे, इसके अलावा बादशाह भी इसको इस्तेमाल कर सकते थे। पुराना इस्लामा जब हम पढ़ते हैं तो साउल बादशाह, जो कि बनी इसराइल का पहला बादशाह था, वो उरीम और तमीम को इस्तेमाल करने की बड़ी कोशिश करता है, क्योंकि उसका दिल खुदा के करीब नहीं था, इसलिए उरीम और तमीम की तरफ से उसको कोई जवाब नहीं मिलता, और फिर वो जादूगरों के पास जाता है अपनी राय लेने के लिए। तो जी तो ये है उरीम और तमीम जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, और उसकी 15वीं और 15वीं से लेके 17वीं आयत पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूं। उसमें लिखा हुआ है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती,
उसे देखती और ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। रूहे हक। अजी तो क्या मसीहों को उरीम और तमीम की जरूरत है? क्या हुक्म दिया गया है? मसीहों को हुक्म नहीं दिया गया। ना ही नए नामे में हम उरीम और तमीम का जिक्र पढ़ते हैं। मसीह यीशु ने उरीम और तमीम का तो नहीं कहा, लेकिन पाक रूह का वादा आपसे जरूर किया है और उस वादे को मसीह यीशु ने निभाया भी है, जैसे कि मैंने हवाला भी पढ़ा है। यूहन्ना की इंजील 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत। कोई भी बहन या भाई उनकी आवाज में पढ़ सकता है। लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। काहन क्या करता था? आइंदा आने वाला जो भी था उसको खुदा की हजूरी में जाकर या उरीम और तमीम को इस्तेमाल करते हुए खुदा की मर्जी को मालूम करता था। लेकिन मसीह यीशु क्या कह रहे हैं कि जब वो रूहे हक आएगा तो वो तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। मसीहों को उरीम और तमीम की कोई जरूरत नहीं अजीजों। मसीहों को जो चाहिए था वो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने वादा के मुताबिक उनको दे दिया था। और उरीम और तमीम तो काहनों के साथ सदा ना रही, लेकिन जो रूहे हक है, जो पाक रूह है, वो मसीहों के साथ आखिर तक रहेगी। ये मसीह यीशु का वादा है। यूहन्ना की इंजील 15वां बाब और उसकी 26वीं आयत। कोई भी कहिए भाई इनकी आवाज में पढ़ सकते हैं। दाऊद के कलाम में यूं मरकूम है, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूहे हक, जो बाप से सादर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। वो मेरी गवाही देगा। अजीजों, ये वो हवाला जात है, सिर्फ यही नहीं है, बाइबल में और भी बहुत सारे हवाला जात हैं। तो वक्त को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा एक आपको बताया गया है कि मसीहों को किस चीज की जरूरत है। मसीहों को पवित्र आत्मा की जरूरत है, मसीहों को पाक रूह की जरूरत है। और जिस चीज का खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे वादा किया था वो उनको दी थी, और वो आज तक खुदावंद के खादमों के साथ, मसीहों के साथ आज तक मौजूद है। कलाम में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां मौजूद होऊंगा। तो ये हमारा ईमान होना चाहिए कि रूहे हक हमारे दरमियान मौजूद है और वो हमारी हर तरह से मदद करता है। वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। अब हमें किसी उरीम और तमीम की जरूरत नहीं है। जिस चीज की जरूरत थी वो मसीह यीशु ने हमें दे दी है। हालेलुया। और ये रूहे हक अजीजों हर वक्त आपके साथ रहता है, हर मामले में आपके साथ रहता है, हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है। जब बागे अदन में खुदा और इंसान का ताल्लुक टूट गया, जुदाई पैदा हो गई, तो खुदा चाहता था कि खुदा किसी ना किसी तरीके से अपने लोगों के साथ रफाकत रखे। तो खुदा ने उसके लिए एक इंतजाम भी किया बलि का। बकरों को ज़बह किया जाता। काहन जब पाक तरीन मकाम में जाता था तो वो बकरे की बलि देकर सारी कौम के लिए और अपने लिए कुर्बानी करता था और फिर पाक तरीन मकाम में जाता था। तो जिस जगह पर खुदा आ मौजूद होता था उसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था, शकाइना अंग्रेजी जबान में, लेकिन हिब्रू में शकीना कहते हैं। जब हम इसी लफ्ज को अरबी जबान में पढ़ते हैं तो सकीना कहते हैं। जैसे ताबूत सकीना, जहां वो ताबूत होता था वहां पर खुदा की हुजूरी होती थी। शकाइना, शकीना। तो जब अबर छा जाता था तो उसके लिए भी लफ्ज शकीना इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि वहां पर खुदा की हुजूरी होती थी। तो
खुदा चाहता था कि खुदा की जो रफाकत है वो इंसान के साथ सदा ही रहे। क्या ओरीम और तुमीम सदा हमारे साथ रहा? आज हम उसका नाम भी कभी पढ़ते हैं तो शायद उसके बारे में हमें पता नहीं चलता कि ओरीम और तुमीम कोई चीज थी। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा यानी कि शकाइना खुदावंद की हुजूरी को जब हम देखते हैं तो उसका वादा जो खुदा ने हमसे किया था उस वादे को पूरा भी किया। जब उस वादे को पूरा किया तो उसके वसीला से मसीही लोग इस्तेमाल हुए और पहली कलीसिया वजूद में आई और पहली कलीसिया में 3000 लोग मसीही हो गए। हालेलुया। अजीजों, ये जो 3000 लोग मसीही हुए जिन्होंने मसीहत को कबूल किया, क्या वो कैथोलिक थे? क्या वो कोई प्रोटेस्टेंट थे या भाई मिशन के थे या किसी और 7 डे या कोई और कलीसिया के थे? अजी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मसीही थे। वो सिर्फ मसीही थे। बाइबल में कुछ भी नहीं लिखा। बाइबल में ना तो कैथोलिक लिखा हुआ है, ना कि पीटीएम से लिखा है, ना कुछ और लिखा है। बाइबल में सिर्फ और सिर्फ मसीही लिखा है। ये अदारे हैं जहां से हम कोर्सेज करते हैं, ये स्कूल्स हैं जहां से हम डिग्री हासिल करते हैं और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं। लेकिन मिशन वही है जो कि मसीह यीशु का है। मसीह यीशु ने कहा कि जाओ और सारी कौमों को अंजील की मनादी करो, उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। अजीजों, ये उस वक्त हो सकता है जब हमारे साथ दूसरा मददगार होगा यानी रूहे हक। और ईम और तमीम से आप ये गवाही नहीं दे सकते। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे।